been given the opportunity to welcome Sri Sanjeev Ranjan Ojha, Indian Police Service, Additional DG, North East Zone, CRPF. Give a big hand. On behalf of all the officers and families and all the range personnel, also on behalf of IG Manipur and Nagaland Sector CRPF, I cordially welcome you, sir. And it is an auspicious occasion for all of us when Srimati Anju Ojha, who is President of CRPF Wife Welfare Association of Northeast Zone, CRPF, who has taken the pain to come here to visit the place to look after and analyze the issues and problems of the families who are staying here in Nagaland, also in this campus. On behalf of all the families, children, and all officers and staff, we cordially welcome you, ma'am. And it's a great moment for all of us when Miss Arsia, daughter of Honorable Additional DG Sir, who is social reformer and also having multifarious qualities, and is on the job on research and development on criminology. So she has also taken pain to come here specially to study the present security scenario in the state, to understand the functioning of the organization in this trouble-prone state. So on behalf of family, children, and all the officers and staff, we cordially welcome Miss Arsia. Now, here present Sri M.S. Sekhavat Sir, who is IGP Manipur and Nagaland Sector CRPF, who has also taken the pain to come here and to discuss various typical, critical, challenging operational issues prevailing in this state. On behalf of officers, staff, and families, we cordially welcome you, sir. Now, Srimati Manmohan Shekhawat, who is President of CRPF Wife Welfare Association of Manipur and Nagaland Sector. She has also taken pain to come here and to discuss various issues of Manipur and Nagaland state pertaining to family welfare, family problems, and what the future strategies can be drawn, and to discuss with ADG ma'am on these issues. So on behalf of all the family, children, and all of the staff, we also cordially welcome you, ma'am. Now, at this occasion, we'd like to felicitate our Chief Guest ADG Sir and Chief Guest ADG Ma'am. Please come. May I request to IC Sir to assist for the felicitation part. और जो लेडीज आई हैं, आईजी साहब, आईजी एनएन सेक्टर, दिस इज अंजू ओझा, दिस इज शेखावत, डीआईजी मिस्टर श्यामचंद दे, अफसरान जो उपस्थित हैं यहाँ पे, एसओज एंड ओआर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ था उससे ऐसा लगा कि माहौल यहाँ बहुत ख़राब होगा। पहले ही मेरा बन रहा था प्रोग्राम, बट बाद में कुछ पोस्टपोन हुआ उस इंसिडेंट की वजह से। बट ऐसा नहीं लगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पीस लविंग, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हम वहाँ भी गए, रिमोट इलाके में
और ऊपर भी गए और लोकल से भी इंटरैक्ट किए, तो ये भावना कहीं ऐसी नहीं आई कि मिलिटेंसी वाली भावना किसी भी व्यक्ति से जो लोकल हैं उनसे नहीं आई। वो अपने कल्चर के प्रति जागरूक हैं, ये मुझे लगा। और बहुत सेंसिटिव है, ईमानदार हैं, और उनकी अपनी एक वे ऑफ लाइफ है जिसको वो प्रोटेक्ट करना और उसको संभाल के रखना चाहिए, और डेवलपमेंट और पीस में बिलीव। ये मेरा विजिट का अनुभव रहा। थैंक यू सर। और सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि वो नील ह्यूमन राइट्स के साथ चलती है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत प्रचुर मात्रा में। जहां भी गया मैंने देखा कि हर सिचुएशन के साथ अडैप्ट होने की क्षमता है सीआरपीएफ। इस फोर्स की क्वालिटी रही है और सबसे पुरानी फोर्स है। अगर आप जेएनके में भी लगा देंगे तो जेएनके में जो स्थिति है उसको हैंडल करने की इसमें क्षमता है। एलडब्ल्यूई में जो स्थिति है उसको भी हैंडल करने की इसमें क्षमता है, और नॉर्थ ईस्ट की अलग सिचुएशन को भी हैंडल करने की इसमें क्षमता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने के लिए आपको गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। You should be proud of being part of this great force. और जहां भी आप हैं वहां शांति कायम करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करें। यह मत सोचे कि फोर्स आपको क्या दे सकता है, आप यह सोचे कि आप फोर्स को क्या दे सकते हैं। और सब जब फोर्स के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, तो यह अपने आप में एक बहुत बढ़िया, जिसको कोई भी बीट करने की कोई भी बीट नहीं कर सकता, ऐसी फोर्स बनने की इसकी क्षमता है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी जो कि बहुत बड़ी चुनौती है इतने बड़ी डाइवर्स कंट्री में, उसको संभालने की क्षमता केवल एक ही फोर्स है जो कि सीआरपीएफ को मिली है। और ये इसकी अपनी काबिलियत से मिली है, इसकी अपनी काबिलियत से मिली है जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। और वो फोर्स बनती है आप जवानों से, आप अफसरान से, आप एसओस से। तो इस फोर्स के लिए हर व्यक्ति जो जहां है वहां कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा, तभी ये फोर्स, ये महान फोर्स है। और जो फैमिलीज हैं उन्होंने भी योगदान पीछे रह के बैकग्राउंड में किया है और कर रही है। क्योंकि जो फैमिलीज हैं वो घर संभाल रही हैं और बच्चों को संभाल रही हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो दूर दराज इलाकों में डिप्लॉयड हैं। सबकी यह अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती है कि वो अपने परिवार के साथ रह पाए। तो सारी मोस्टली जिम्मेदारी जो होती है वो औरतों पे आके पड़ती है। बच्चों को संभालना, घर संभालना, और माता पिता परिवार को सहेज कर, संवार कर रखना, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 महीने की छुट्टी मिलती है जवान को और 15 दिन की सीएल, तो 2.25 महीने में 12 महीने का काम करना असंभव है। तो सबसे ज़्यादा सैल्यूट जो मिलना चाहिए वो फैमिलीज़ को मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके पीछे परिवार की देखभाल की। और इसलिए आप सब सैल्यूट के पात्र हैं। और जो डीआईजी साहब ने किया है वो बहुत बड़ी बात है कि आपको ऑनर करते हैं, रिकमेंड करते हैं।